Okay, so I'm going to give you guys a grammar lesson, not a grammar lesson. I'm going to give you an exercise, okay? And I want you to do them, of course. It is a question of a or an. You know, do you feel comfortable using a or an because it is different in Hindi and different in English? So in front of you on your screen, you can see some questions with some blanks, and you have to just use a or an if necessary, okay? So let's see. Number one, I would like Yasmin ma'am to go first. Sir, my neighbor is a photographer. Okay, Let us ask him for an advice about color film. okay. Pankri, number one. My neighbor is a photographer. Let's ask him for an advice about color films. Okay. So guys, understand. This is not just a grammar lesson because the most elementary class also teaches where to use a, where to use an, which you guys followed, and you used an for advice, okay, or before advice, which was, I told you, an elementary lesson that you use an before a noun which starts with a vowel sound. Okay. But advice is an uncountable noun in English. This is an advanced lesson of grammar, okay? So you should have said, my neighbor is a photographer. By the way, that's the pronunciation, photographer. Everything else is an Indianized pronunciation. The English pronunciation, the way people who speak English say it, is photographer, okay? My neighbor is a photographer. Let's ask him for advice about color films. You can't say an advice because advice is uncountable. Okay? Sir, a piece of advice, I think. You can, if you have to insist, quantify the number. Yasmin ma'am, got it? Now, if you have to insist, you have to emphasize that particular part, that quantity, then you can say a piece of advice. Otherwise, you can simply say advice, some advice, you know. If you need any advice, call me. Well, I was looking for some advice, so I called you. I was looking for some advice, so I called you. So advice is not a countable noun, and that's why you should not ever say an advice or plural advices. Is that done, everybody? Okay, it's fine. Move on to number two. I will go to Pankuri first this time. We had fish and chips for lunch. That doesn't sound a very interesting lunch. Okay, Yasmin ma'am. We had fish. We had a fish and chips for the lunch. That doesn't sound very interesting lunch. A very Okay, interesting. okay, okay. So, like I said, this is a grammar lesson, okay, but advanced grammar lesson, okay? And that's why, of course, you guys will make mistakes, but I hope my feedback will help you, okay? So, fish and chips is the name of a dish. It's very popular in England, fish and chips. You should not think of fish separately, chips separately, okay? It is a dish, fish and chips, okay? Fish and chips is a dish. Yeah, it's Yeah, very in popular UK. in the UK, okay? Fish and chips. So we had fish and chips, okay? We had pasta, we had pizza. Understand, these are also dishes. We had chow mein, we had egg rolls, okay? So we had fish and chips for lunch, because before lunch, we don't normally need anything, okay? For lunch, okay? And then the person is, that doesn't sound a very interesting lunch. Normally, we don't use a lunch, okay? But when we put an adjective here before that lunch, then we can use an article a. So, a very interesting lunch. So, we can say, did you have lunch? Have you had lunch? Okay, no a. No a. Have you had lunch? I didn't have lunch today. I'm very hungry. Okay, so I didn't have lunch. No need to use a. But when you put an adjective before lunch, then you need to use the article a or an, depending on the adjective you're using.
Okay, if you remove very, then you will say that doesn't sound an interesting lunch, right? Okay, so I think I've explained what is correct. Are you both confident now? Can you just repeat this one more time? The correct version. We had I fish. said the same thing. You were correct, Pankuri. You didn't make any mistakes, I think. Did you? You said the same thing. We had fish and chips for lunch. And that doesn't sound a very interesting lunch, right? Now, what happens sometimes, Yasmin ji? Pankuri may not be able to explain why she said what she said, you know? She may not be explain the reason because she's not a teacher. But sometimes what happens, because of your practice, exposure, that I say, listening, you know, you become used to the correct use. You become used to the correct use, and that comes out naturally. Force of habit, right? Pankuri, this time you got it right. A very interesting lunch. For lunch, these are your habits now, okay? And that's why you said them. Now, do you think you could have explained the grammar that we don't use articles a before lunch, but when we use an adjective, we use a? If you were capable of explaining it this way, well done. But I'm not sure if you could do that. But still, you got it right. As a learner, you're not supposed to explain the reasons all the time. You're supposed to use the things correctly. That's all. When you're a teacher, maybe you need to know the reason. The problem is students pay too much attention on the reasoning, but they don't develop a habit for getting them right. What matters more for them? To get it right. Okay. So the language course that I offer, Pankuri, gets people used to the correct uses. Even before they realize the reasoning, why they are correct. They just get used to what is right. Subconsciously. Yasmin ma'am, I would like you to just read sentence number 2 one more time very quickly. 2 numbers. Number 2, yeah. We had fish and chips for lunch. That doesn't sound a very interesting lunch. Okay, I guess the meaning is very clear, right? Two Yes, sir. people are talking. Yeah. One person said, oh, we had fish and chips for lunch. That doesn't sound a very interesting lunch. Okay. Lunch. Now, number 3. Who will go first? This time, Yasmin ma'am will go first. Number 3, Yasmin ma'am. I had a very bad night. I didn't sleep a wink. Okay, well done. Pankuri, what do you think? Is it correct or you want to make some changes? I think it's correct. I had a very bad night and I didn't sleep a wink. Exactly. Now, you, through this exercise, you just learned a lovely expression. What did you learn, Yasmin ma'am? I will go to Yasmin ma'am wink. first. Yasmin ma'am, did you learn something really interesting that you didn't know before? A vocabulary item. A vocabulary item. Did you learn a vocabulary item? Although it is not a vocabulary class, but when you are exposed to English, Yes, then you keep learning vocabulary items. People say my vocabulary is poor. Of course, because you stay out of touch. You're not in close contact with English. You, no matter how hard you try to memorize words from a list, you're never going to be successful. So stay in close contact. See what you learned, Yasmin ma'am. Tell me. I had a very bad night. I didn't sleep a wink. So what did you learn, Yasmin ma'am? Did you learn a vocabulary item? कुछ vocabulary सीखा आपने जो आप पहले नहीं जानती थी? Something that you didn't know before, but now you just learned. ऐसी कुछ बात है? कुछ सीखा आपने? क्या? Yes, sir. क्या सीखा? Observation. कई बार हमारे सामने चीजें होती हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन देख रहे, समझ रहे, फिर भी ये नहीं कह पा रहे कि ये पहले से नहीं जानते थे, अभी जाना मैंने। क्या बता सकती हैं यास्मीन मैम कि आपने अभी क्या सीखा? एक वोकैबुलरी आइटम सीख लिया आपने। चलिए पंखुड़ी से पूछते हैं। पंखुड़ी, आपने कौन से वोकैबुलरी, क्योंकि मुझे पता है आप भी ये नया सीखी, अभी सीखी है ये शायद, या हो सकता है। I have heard it before Wink many means palak. times. Oh, that's Wink. lovely. This is amazing, Pankudi. You are spending more time, in close contact with English. No wonder, you're feeling so comfortable with English now. Okay.
Yes. Yes, Yasmin ma'am. Yes, sir. I think wink is a palak jhapakna, I think. विंक मतलब पलक झपकना तो ठीक है, हमने यहाँ एक वोकैबुलरी हाँ, आइटम सीखा है। स्लीप अ विंक yes. मतलब जो नॉर्मली नेगेटिव में ही यूज होगा, नेगेटिव में ही यूज होगा कि एक Okay, पलक sir. तक नहीं झपकाए, मतलब जरा भी नहीं सोए। अगर आप रात बोलना भर चाहते हैं लाइक जगे रहे। रात भर हाँ जगे हाँ रहे, जरा एकदम नहीं सोए, कैसे? आई डिडंट स्लीप अ विंक। तो विंग। आई डिडंट स्लीप अ विंक, ये एक वोकैबुलरी आइटम नहीं बना, स्लीप अ विंक। लेकिन हमेशा कैसे यूज करेंगे इसको दोस्तों? नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि इसका क्या ही मतलब हो जाएगा, आई स्लेप्ट अ विंक, इसका क्या ही मतलब होगा? ठीक है, गॉट इट? तो आप ये नेगेटिव में ही यूज करेंगे कि yes sir, एक I एक got it. पलक नहीं झपकाए, मतलब एकदम नहीं सोए। ओके, Yes sir. आई हैड अ वेरी बैड नाइट, आई डिडंट स्लीप अ विंक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ परेशानी, कभी कॉफी ज्यादा पी लिया, It's कोई like I have to complete the I had to complete the deadline. I didn't sleep a wink. ओके, बहुत अच्छे। और कभी कभी ये होता है कि आप बेड में हो लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर इमोशनल स्टेट, दैट यू कांट स्लीप, यू जस्ट स्टे Awake. अवेक, या thinking about something, tossing and turning in bed, right? Didn't sleep a wink. Okay, I'll go to you, Pankuri, number 4. Sir, instead of I didn't हाँ, sleep a wink, हम्म, so we can use I didn't get a sleep. ओके यास्मीन मैम, इसके जगह बहुत कुछ बोला जा सकता है क्योंकि एडवांस्ड हाँ लेवल हाँ वोकैबुलरी है। एडवांस लेवल वोकैबुलरी को कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं इजी लोअर लेवल वोकैबुलरी से, दोस्तों हमेशा याद रखना, Like ठीक है? I didn't sleep at all. देख लो, सबसे आसान हो गया, आई डिडंट स्लीप एट ऑल। ओके, खत्म हो गई बात, आई डिडंट स्लीप एट ऑल। तो याद रखना, जब भी हाँ एडवांस okay लेवल sir. वोकैबुलरी है उसको रिप्लेस करा जा सकता है, तभी तो जो एडवांस लेवल पे नहीं वो भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में, राइट? बट सर्टेन थिंग्स वो एक कैच करते हैं, एक सर्टेन इमोशन कैच करते हैं, ठीक है? Yes sir. जैसे यहाँ पर आई डिडंट स्लीप अ विंक, ऐसे आप विंक का ये भी मतलब जानते हैं, जब ऐसे ही विंक्ड एट मी, ही विंक्ड एट मी, विंक इटसेल्फ इज अ वर्ब ना। ही विंक्ड एट मी, डू यू नो व्हाट इट मींस? ही विंक्ड एट मी, उसने कनखी मारी मुझे, हिंदी में बोलते हैं इशारा करना, ही विंक्ड एट मी। So, ओके, सो या, तो इसके जगह ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल वोकैबुलरी, इसको रिप्लेस करना इज ऑलवेज पॉसिबल। कुछ भी एडवांस लेवल वोकैबुलरी आएगी, हायर लेवल वोकैबुलरी आएगी, तो उसको रिप्लेस करने का तो ऑप्शन रहेगा ही ना। अगर नहीं होगा तो फिर आइडिया हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे जो नहीं जानते एडवांस लेवल वोकैबुलरी? तो पूछिए फिर यूज क्या है? वो एक सर्टेन फीलिंग कैच करते हैं, सर्टेन इमोशन को कैच करते हैं, उस तरह से वो वर्ड और फ्रेज बोलना। और सबसे बड़ी बात कि लोगों की आदत होती है जो इंग्लिश बोलते हैं वो बोलते रहने की। अगर आप भी बोलते हैं तो आप नेचुरल साउंड करते हैं। अगर आपके जिस तरह से हिंदी के जगह कोई और किसी और तरह से हिंदी बोले तो वो सही हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल साउंड नहीं करेगा। आपकी आदत जो बन चुकी है हिंदी बोलने की, आप चाहते हैं कि ऐसी हिंदी आप आसपास में लोगों से सुने। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है तो जैसे तैसे ही बोलता है तो आप कंफर्टेबल रहते हैं कि चलो भाई फॉरेनर है, राइट? आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या चाहेंगे? नए नए एक्सप्रेशंस अपने पटारे में डालना और उनको यूज करना, राइट? इसी को ना ग्रोथ करना कहते हैं। क्यों लोग कहते हैं मेरी वोकैबुलरी कमजोर है, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने इमोशंस को वैसे नहीं एक्सप्रेस कर पाते जैसे चाहते हैं, तो इसके लिए वोकैबुलरी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी। हालांकि somehow you can express yourself at an elementary level as well, somehow you can express yourself at a pre-intermediate level as well, but you can express yourself with more flexibility, okay, when you are at a higher level, because you have more words, more vocabulary, more structures at your disposal. ओके, लेट्स सी, जैसे मैंने कह दिया एट योर डिस्पोजल, अभी मुझे ये थोड़ी ना एलिमेंट्री लेवल में बोलना है, यू हैव मोर वर्ड्स बोल के बात चला दूंगा, ठीक है? गोइंग ऑन टू नंबर 4, यू पंखुड़ी, नंबर 4। He's a vegetarian. You won't get meat at his house. He'll give you a nut cutlet. Last time I had a nut cutlet, I had indigestion. ओके, Yasmin ma'am, would you like to read number 4? he's a vegetarian. You won't you won't get meat at his home. He will give you nut cutlet. Last time I had nut cutlet, I had indigestion. There are problems.
यहाँ पे I have to explain certain rules ताकि आपको समझ बने, ठीक है? Concrete, I want you Uh, to go a little slow. Read it one more time. Go on. so, can you hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you totally. Okay. Number 4. Read number 4 one more time. Number 4. Concrete. Concrete, read number 4 He's one a more time. vegetarian. He's a vegetarian. You won't get meat at his house. He'll give you a nut cutlet. Last time I had a nut cutlet, I had indigestion. Okay. With number 4, he's vegetarian, he's a vegetarian. Both are fine, but when you're describing, it can be an adjective like he's Indian, he's an Indian, Yeah, He's yeah. Indian, he is an Indian. Both are correct because Indian is an adjective, Indian is a noun, both. Vegetarian is also an adjective, vegetarian is also a noun, okay? So he's vegetarian. He is vegetarian. That's Vegetarian. fine, no problems. You can also say he's a vegetarian. It is a noun as well. Both the sentences are fine. He's vegetarian and he's a vegetarian. Both are fine. Yasmin ma'am, So did you both are understand? fine, A and without A. हाँ, अभी उसके रीजन पता ही मैंने, आपने समझा रीजन क्या बताया मैंने? Yeah. Mm, रीजन बताइए, Yeah. बताइए रीजन क्यों दोनों यहाँ ए लगाए तो भी सही, ना लगाए तो भी सही, क्यों? Vegetarian is a noun and adjective too. हाँ, तो आगे बढ़े, एक कदम और आगे बढ़े. Yes, sir. मतलब क्या नाउन है, एडजेक्टिव है तो क्या? तो noun के साथ ए लगा सकते हैं, adjective के हाँ, साथ नहीं लगा परफेक्ट. सकते. और जब एडजेक्टिव समझे तो नहीं लगाएंगे, आराम से बोल देंगे ही इज वेजिटेरियन. आगे बढ़ जाते हैं. Yes, sir. यू वोंट गेट Yes. मीट एट हिज हाउस. इसमें ए तो नहीं लगाना. ही वोंट गेट, यू वोंट गेट अ मीट. I was about to say you won't get any meat at his house, well, but that's then totally we're fine. Totally fine. No problems. yeah, Um, but we have the instruction says use a, an, or nothing. Okay. So you won't get meat at his house. He will give you nut cutlet. यहाँ पर no a. He will give you nut cutlet. He will give you nut Nut. cutlet. यहाँ So पर I a बोलो. thought, हाँ, cutlet in a हाँ. pieces, so we count that nut cutlets. Okay, So okay, okay, that's okay. why I Okay, used okay. a. Definitely, actually. definitely. बट यहाँ पर ए ना बोलने की वजह मैं बताता हूँ. एक आपकी बात सही है और वो क्यों यूज होना चाहिए वो भी बताता हूँ, क्यों नहीं यूज होना चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पर वो सिर्फ एक आइडिया है नट कटलेट, वो बोल रहे हैं इफ ही विल गिव यू नट कटलेट. और उसके बाद लास्ट टाइम आई हैड ए नट कटलेट. यहाँ सही है, ए नट कटलेट. सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. आई टोल्ड यू एडवांस लेसन ऑफ ग्रामर. मुझे नहीं पता कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे. आई एम गोना शेयर दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ओके, कि ग्रामर का क्या होता है, कैसे समझा जाता है, एक ही रूल को कैसे 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 चीजों को अप्लाई करते हैं. देखो यहाँ Okay, पे. yeah, it's very interesting that one is idea nut cutlet. It represents idea, and one is like last time I had a nut cutlet. It's हाँ, very interesting. समझ में आया बात? Yeah. तो he will give you nut cutlet. Last time I had a nut cutlet, I had Indigestion. indigestion. बात समझ में आई दोस्तों? बहुत आसान है. I had an indigestion. I had indigestion. I Both had are correct, sir. indigestion. Think about it. आप ही बताएं मुझे क्या होना चाहिए, बताइए. I had I had indigestion. indigestion. I had an indigestion or So indigestion. जैसे Okay. I have a headache होता है ना, Yes. ये मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे. हाँ, ठीक है. तो indigestion के साथ and लगेगा या नहीं? Excuse me. Let me just welcome Zafri first of all. Hey Zafri. Zafri, you joined the class? Yes, sir. we are not gonna stay here long because we are doing some grammar lessons. Okay. Okay. So what happens? You see, I had an indigestion. Okay. I had indigestion. Normally what happens, you see, you have the idea of have,
एंड देन यू आई हैड अ स्विम, आई हैड अ स्विम। आप मुझे बताओ, ये स्विम कोई काउंटेबल चीज है, लेकिन हैव के साथ ज्यादातर जो नाउन्स आप यूज करते हो, ओके, देन यू यूज विद आर्टिकल्स, एंड देर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे आई हैव ए ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, आई हैव ब्रेकफास्ट बोलना है, ओके, बट मोस्टली आप बोलते हो आई हैव एन आर्ग्यूमेंट। अब आप मुझे बताओ, आर्ग्यूमेंट काउंटेबल है क्या नॉर्मली? आर्ग्यूमेंट तो बहस है, उसको कैसे बोले एक बहस दो बहस, लेकिन आर्गुमेंट के इवेंट को तो काउंट कर सकते ना, ये एक बार आज हुआ, फिर दोबारा हुआ, तो इस तरह से आर्गुमेंट काउंटेबल बना। वैसे ही इनडाइजेशन अपने आप में अनकाउंटेबल है, राइट? लेकिन आज एक बार इनडाइजेशन हुआ, फिर एक बार इनडाइजेशन हुआ, तो उसके इवेंट तो काउंट कर सकते हैं ना। तो उसी वजह से यहां पर हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे? And indigestion. and आई होप यू अंडरस्टैंड। digestion. ओके, Yes, sir. नंबर 5, who will go first? Yasmin ma'am, will you go first? Number 5. A travel agent would give you information and information about hotels. Only A I couldn't hear travel- Yasmin ma'am, or did you also have problems? Travel Oh, it's agent my would problem. give you an information about a hotel. A A hotel. travel agent would give you an information about hotels. Okay. Everybody, a travel agent would give you information, no need to use articles here, about hotels. Okay. Now, a travel agent would give you, okay, information is like advice, uncountable. Okay. And this is again advanced level grammar. You must know that advice and information are uncountable nouns. Though, I mean, this is just a random thing about English. Certain nouns are considered Very random. uncountable. Yeah. However, the translation of the word, the Hindi equivalent, is not uncountable. If you think information, Hindi, सूचना, then सूचना is not uncountable in Hindi. एक सूचना, सूचनाओं, all right? सूचनाओं का भंडार, okay? So you have information, the Hindi equivalent of information, as a countable noun. यही वजह है कि हिंदी बोलने वाले information को uncountable मानने में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये जिस आइडिया को एक्सप्रेस करता है इंग्लिश में, वो आइडिया हिंदी में तो काउंटेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल ट्रांसलेशन से करते हैं कि चूंकि इसका हिंदी ये होता है, ये काउंटेबल होगा, ठीक है, तो वो फंसेंगे ऐसे, क्योंकि जो चीज हिंदी में काउंटेबल है वो जरूरी नहीं है इंग्लिश में काउंटेबल हो, और जो इंग्लिश में काउंटेबल है वो जरूरी नहीं हिंदी में काउंटेबल हो। इसका ये मतलब है कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं अपने हर एक लैंग्वेज में जो अलग तरीके से यूज होते हैं। अब हिंदी की बात करते हैं अगर आप, तो आम का प्लूरल क्या होता है, जरा बताना मुझे। आम, आम। ओके, और आमो भी होता है, लेकिन एक किसी खास कॉन्टेक्स्ट में। तो हिंदी के प्लूरल करना उतना आसान नहीं जितना इंग्लिश का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। इंग्लिश का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि आप एस ई एस लगा दो, आपको प्लूरल मिल जाता है रेगुलर नाउन्स के, फिर इरेगुलर याद कर लेने होते हैं। लेकिन हिंदी के सिंगुलर प्लूरल का आइडिया काफी कॉम्प्लेक्स है। मैंने एक आम खाया, मैंने 2 आम खाए। ये देखना, गौर करना, मैंने एक आम खाया, मैंने 2 आम खाया नहीं बोल सकते, खाए बोल जाएंगे, नेचुरल करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट हिंदी में, लेकिन 2 आम ही रहते हैं। लेकिन फिर आमों के बारे में भी बात कर सकते हैं। आमों के पेड़, आमों के पेड़ों में, ठीक है, या आम के पेड़ों में, आम के पेड़ों में। आम का प्लूरल आप नहीं करते, आमों, आम के, मुझे लगता है आम के प्लूरल हम नहीं करते। लेकिन ऐसे कई नाउन्स हैं, ऐसे कई नाउन्स हैं जिसमें एक जगह पे प्लूरल नहीं होता, फिर दूसरी जगह पे प्लूरल हो सकता है, तो हिंदी का लाइक एक रोटी खाई, 2 रोटियां खाई। हाँ हाँ, ठीक है। और फिर रोटियों भी होता है ना, रोटियों, या रोटियों भी होता है एक प्लूरल, रोटियों, ठीक है। रोटियों की संख्या बताइए। एक दिन में अगर आप 4 रोटियां खाते हैं, तो 7 दिन में खाए जाने वाली रोटियों की संख्या बताइए। रोटियां की संख्या नहीं होगा अब। तो आपने देखा कि एक रोटी के 2 प्लूरल हुए, एक रोटियां, एक रोटियों।
तो हिंदी और इंग्लिश को कंपेयर करें, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, इंग्लिश, बस एस डालना है, प्लूरल मिल गया। और अगर एस से नहीं होगा तो एक रैंडम प्लूरल फॉर्म होगा, लेकिन एक ही होगा, टेंशन नहीं लेने का ज्यादातर केसेस में। ओके तो दोस्तों आप थोड़ा कंपेयर करें, याद करना क्या है, ट्रांसलेशन करना क्या, कंपेयर करें। सही तरीके से सीखने में आपका दिमाग लगता है और आप इन्वॉल्व होते हैं। टीचर की बात सुन के टीचर की बातों को रट्टा मार जाए, उसको लर्निंग कहाँ से कहने लगे हम लोग, कब से कहने लगे, उसको लर्निंग कैसे कहते हैं। इसी वजह से कई टीचर्स ऐसे होते हैं आपके शहर में जिन्होंने 10-15 साल इंग्लिश को दे दिया, बहुत सारी चीजें रट ली, तो इंफॉर्मेशन तो अक्वायर कर लिया, कलेक्ट कर लिया है, और वही इंफॉर्मेशन चिपकाते रहते हैं। और चूंकि उनके पास ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में इकट्ठा किया है, तो लड़कों के ऊपर वो कह सकते हैं कि वो टीचर है, बट द रियलिटी इज उनकी समझ नहीं होती टीचर वाली, जो बच्चों को कुछ क्लैरिफाई कर सके उनके कंफ्यूजन्स को। तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है इंग्लिश में, लेकिन इसकी जो हिंदी होती Yes, है sir. वो काउंटेबल होती है, सूचना, ठीक है, खबर। नंबर 6, we'd better go by, okay, who will We'd read? get. Next Sir, person? I'll go. Okay, Uh, go Pankaj. we'd, Yes, sir. Okay, we'd better go by a taxi if we get a taxi at such hour as 2 a.m. चलिए यास्मीन मैम। They would better go by taxi if we can get a taxi as such an hour as 2 a.m. we'd better go by, A Taxi. taxi. A taxi. Taxi. we'd better By go by taxi, we'd better go by taxi। आप taxi. यहां पर नहीं Taxi. लगाना चाहेंगे, क्या नहीं लगाना चाहेंगे, आर्टिकल्स, बिकॉज Article. बिकॉज ये फिक्स्ड है। जब बाई बोलते हैं तो सिर्फ नाम बताना होता है इसके पीछे, लेकिन ये बाई की जगह इन होता तो ए टैक्सी बोल सकते थे, ठीक है। अगर बाई है तो यहां, समझ रहे आप? No, Taxi no, होगा yes. बच्चा. By bus, ओके by ओके, train. यस, जस्ट अ सेकंड, आई नीड टू टेक अ कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? विद By बेटर taxi. गो बाय टैक्सी। अगर यहाँ बाई की जगह इन होता तो In a taxi. In a taxi. ओके तो ये रिमेंबर, अपने ध्यान रखना है हमें कि बाई के बाद सिर्फ नाम बोलना होता है ट्रांसपोर्ट का, उसमें आर्टिकल्स नहीं लगाने। बाई माई बाइक बोल सकते हैं, बाई माई बाइक, हम तुम्हें अपने बाइक से छोड़ देंगे, आई विल ड्रॉप यू बाई माई बाइक। यास्मीन मैम, हम आपको अपने बाइक से छोड़ देंगे, आई विल ड्रॉप यू बाई माई बाइक। Yes. सही है? नहीं, समझ नहीं आ रहा? मैंने अभी बताया, अगर बाई आया तो बाई के Yes, बाद sir. सिर्फ नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट चाहिए, सिर्फ नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यहां तो मैं बोल रहा हूं बाई माई बाइक, माई बाइक तो कोई ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं है, बाइक है No. ट्रांसपोर्ट का नाम, इसलिए आप बोल सकते हैं आई विल ड्रॉप यू बाय बाइक। लेकिन अगर आप अपने बाइक के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने बाइक से छोड़ देंगे, देन यू विल से आई ड्रॉप यू ऑन माई बाइक। On my bike. करेक्ट? तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट को के पहले कोई भी इस तरह के इनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स यूज करने हैं, तो आप बाय नहीं यूज कर सकते। अगर आप ट्रांसपोर्ट के नाम के पहले कोई डिटर्मिनर यूज करना चाहते हैं, जैसे ए, दिस, माई, योर, कुछ भी, तो आप बाय नहीं यूज कर सकते। बाय इज यूज्ड सिर्फ ट्रांसपोर्ट के नाम के साथ, बाय टैक्सी, बाय प्लेन, बाय कार, by bike, by auto, by rickshaw, okay?
बट आप Yes, sir. उसमें डिटर्मिनर जहां यूज किया आपने उसके पहले ए, माई, योर, दिस, कुछ भी, तो बाय नहीं रह जाएगा फिर आपको दूसरे प्रिपोजिशंस यूज करने पड़ेंगे, इन, ऑन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर जैसे we would better go by on car या in car. फिर से आप बोले। We would better go by on car अभी आपने or मैंने in car. आपने अपने नहीं, आप बाय भी बोल रही हैं और ऑन भी बोल रही हैं, इन भी बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं आप? मैंने अभी जो लेसन दिया तो वो जैसे क्या था? on लगाना है तो by नहीं लगाना है क्या सर? हाँ, आप समझें इस बात को। बाय के बाद सिर्फ नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई डिटर्मिनर यूज नहीं किया जा सकता, है ना? यानी बाय अगर बोला है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नाम बताना है, बाय टैक्सी, बाय कार, Right, right. बाय प्लेन, बाय ट्रेन। ओके, आप इस तरह से बोल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने उस ट्रांसपोर्ट के नाम के पहले कोई तरह का डिटर्मिनर यूज कर लिया, ए, द, योर, माय, तो आप वहां पर बाय नहीं यूज कर सकते। बाय वाला फ्रेज 2 वर्ड का फ्रेज होता है सिर्फ। बाय रोड, Yes, बाय sir. एयर, बाय ट्रेन, ये 2 वर्ड्स के फ्रेजेस होते हैं, फिक्स्ड है ये। ओके एवरीवन। लेकिन अगर आप एक चाहें, मिनट सर. हम्म, तो अगर जैसे मुझे बोलना होगा we would better go on car. अच्छा आप ये कहना चाह रही हैं ओ एन हम्म. कि ओ डब्ल्यू एन, कौन सा बोल रही हैं आप, ओ एन या O ओ W डब्ल्यू N एन, कौन O सा? W O W N. ओके ठीक है, चलिए आते हैं। We'd better go in our own car. We'd better go in our own car. In our own car. खाली ओन नहीं, ओन के पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव आर भी यूज करना पड़ेगा, ओ यू आर, है ना? We'd Okay, better sir. Okay, go sir. in our own car. ठीक है, बात समझ में आई? Okay. कि हम बेहतर होगा Yes. कि हम अपने कार से चले जाएं। अच्छा जरा सा हेल्प दे दूं मैं आपको, यहाँ बीट बेटर लिखा है तो ये अपोस्ट्रोफी डी को क्या समझोगे? ये हैड है दोस्तों, क्या है ये? हैड। ओके, हैड है ये। अगर इसको सेपरेट करना हो तो लिखेंगे वी हैड बेटर। ओके, वुड नहीं Hmm. समझना इसको, डिड नहीं समझना इसको, हैड समझना, वी हैड बेटर। ये यूज किया जाता है प्रेफरेंस के लिए कि कौन सा चॉइस बेहतर होगा। ओके, विद बेटर गो बाय टैक्सी, बेहतर होगा कि हम टैक्सी से चले जाएं हम लोग। विद बेटर गो बाय टैक्सी। अगर आप बाई को इन लगाना चाहें, हाँ, तो आप बोल सकते हैं विद बेटर गो इन आर टैक्सी और इन ए टैक्सी, इन ए टैक्सी। ठीक है, Taxi. हाँ, वो 3 वर्ड्स के फ्रेजेस हो जाते हैं। जैसे ही कोई और प्रीपोजिशन आप यूज करते हो तो बाई के साथ 2 वर्ड वाला होता है, बाई कार, बाई टैक्सी, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई एयर, अंडरस्टैंड? बाई सी ये भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये 2 वर्ड के फ्रेजेस होते हैं। यहां तक तो बहुत परेशानी नहीं है। विद बेटर गो बाई टैक्सी। इफ वी कैन गेट अ टैक्सी, गेट अ टैक्सी, इफ वी कैन गेट Get अ a टैक्सी taxi. at at Such hour at such 2 an hour, a.m. such an hour as 2 a.m. At such an hour as 2 a.m. Such an hour. हाँ, इस So समय, is it इस a समय। fixed यस expression? यस यस, सच Such एन an आवर, hour. सच एन आवर, इसका मतलब इस समय, ऐसे समय में, है ना? 2 बज रहा है, ऐसे समय में 2 बज रहा है। हाँ, बेहतर होगा कि टैक्सी मिल जाए। अगर हम लोग को टैक्सी मिल जाए इस समय 2 बजे, मतलब 2 बज रहे हैं रात के, हिंदी में 2 बजते हैं रात के, इंग्लिश में 2 बजते हैं एम या 2 in the morning, इस समय अगर मिल जाए टैक्सी, इस समय बोलने का मतलब यहाँ क्या है? एट सच एन आवर बोलने का मतलब कि ये ऑड आवर है। ऑड आवर है, क्या है बेटा? ऑड आवर है, यानी कि नॉर्मल टाइम नहीं है। अगर आप दिन के 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे शाम में कोई टैक्सी ढूंढना चाहते हैं तो ये बोलने की जरूरत है कि इफ वी कैन गेट अ टैक्सी, कि अगर टैक्सी मिल जाए। टैक्सी तो मिलना ही है उस समय। टैक्सी कब नहीं मिलती है? रात के 2 बजे, 1 बजे टैक्सी मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए इस समय पे, एट सच एन आवर, इस एक्सप्रेशन को समझ रहे हो? मान लो आपके दोस्त ने आपको फोन करके कहा मेरे घर आ जा, ठीक है, 11 बजे दिन में कहा, आप बोलेंगे ठीक है आ रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं आ रहे हैं, बिजी हैं, सारी बातें होंगी। लेकिन उसने यही काम किया 1 बजे रात में फोन करके घर आ जा, तो आप पूछोगे इस समय रात के 1 बजे घर आए तुम्हारे, क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया है? यही बोलोगे ना, इस समय रात के 1 बजे। तो ये इस At समय such रात an के 1 बजे कैसे बोलोगे आप? यू वॉन्ट मी टू come to your house at such an hour as 1 a.m.
At such an hour. as 1 a.m. right? इस समय 1 बजे रात में तुमको आप घर बुला रहे हो. You are calling me to your house at such an hour as 1 a.m. What's going on? ठीक है? Are you all right? है ना? तो आप समझ गए ये फ्रेज का क्या मतलब है यहाँ पे? At such an hour? Yes, sir. At such an hour. तो मैं सोच रहा हूं कि मैं वीडियो को लंबा ना करूं. ठीक है, इसमें और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं. एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो. हम लोग कल कंटिन्यू, सॉरी कल नहीं कर सकते, विल कंटिन्यू ऑन संडे. और आप लोग, आपने कहा था यास्मीन मैम मुझे कुछ होमवर्क भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ये भेज दूंगा पेज, आपको भी पंखुड़ी. ठीक है, Yes, जब आप sir. लोग करके बैठे होंगे तो थोड़ा सा होता है कि ज्यादा कैच कर सकते हैं हम लोग. पिछली बार भी यही बात करी थी हमने, राइट? अच्छा, वो पिछले बार वाले सवाल में एक सवाल मैंने छोड़ रखा था ना, याद है? वो भी अच्छा, आएंगे क्वेश्चन रख के Yes, सामने sir. करते हैं. ठीक है, वहां फॉर होता था ना टू की जगह, क्योंकि नाउन था आगे, वर्ब नहीं था, तो फॉर बोलना था. जैसे इफ इट wasn't फॉर योर हेल्प आई वुडंट बी इन दिस पोजीशन टुडे. ठीक है, तो इफ इट wasn't फॉर योर हेल्प, यहाँ टू योर हेल्प नहीं, तो अच्छा कर लेंगे, मिलेंगे तो कर लेंगे, अभी समझा नहीं पाएंगे ना. आई एम ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ पेशेंस. ओके, सो मे बी बिकॉज मैं और भी सोच रहा हूँ कि आपके, चूंकि मैं ये चीज़ पढ़ाने में बहुत मज़े करता हूँ, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही है? आपको मज़ा आ रहा है ये जानने में कि ये सब चीज़ों के थ्रू कुछ नई चीज़ें जान जाएंगे आप, कुछ एडवांस ग्रामर रूल्स. Yes, sir. तो फिर इसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं, हो सकता है वेंसडे को रात में ना करके दोपहर वगैरह में कर ले, ताकि थोड़ा हम भी रिलैक्स होकर के करें. जैसे अभी मैंने आधे घंटे डिस्कशन किया है लर्निंग पे कि क्या करना चाहिए, और आधे घंटे मैंने ये बताया है रूल्स, ये एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट? लेकिन मैं चाहूंगा कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, तो इसके लिए मुझे 1 घंटे कम से कम पढ़ाना होगा आपको. ओके, तो देखते हैं व्हेन आई रीशेड्यूल द क्लास, वो टाइम मैं बता दूंगा ग्रुप में. ठीक है, कितने बजे. आप लोग फॉलो करते रहना ग्रुप में मैसेजेस को. लेट्स मीट Okay, sir. for the next class next time. Okay, I'll let you know On when. Sunday. Most probably Good Sunday. night. Most probably Sunday. Yeah. Good Bye night. bye. Bye bye. Bye, sir. Bye Good bye night. everybody. Bye bye.